रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टॉपिक 1.9 डायमेंशन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है, ऑब्टेन बाय द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस एन एक्सप्रेशन फॉर द वेवलेंथ लैम्डा एसोसिएटेड विद अ मूविंग इलेक्ट्रॉन। Assume that the wavelength depends upon the mass, its velocity and the Planck's constant h. Hint given है that the dimensions for the Planck's constant is m l square t minus 1. So इस क्वेश्चन में हमें wavelength का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है which is associated with a moving electron with the help of the dimensional analysis. So आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। So to solve this question, first of all we have to suppose that the wavelength is proportional to some powers of the mass, velocity and the Planck's constant. और इस केस में हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो wavelength है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है to some powers of the mass, velocity and the Planck's constant such that lambda is proportional to m to the power a, lambda is proportional to v to the power b and wavelength is proportional to h to the power c. And by combining the above results we get wavelength lambda proportional to m to the power a, v to the power b and h to the power c. और जब भी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव किया जाता है हमारे पास कांस्टेंट आता है, एंड इन दिस केस let's consider the k as the proportionality constant. And now by substituting the dimensions of the quantities we get wavelength की जो डायमेंशन है वो लेंथ की होती है। सो इसमें मैस और टाइम जो है उनकी डायमेंशंस की जो पावर है वो ज़ीरो रहेंगी, जबकि एल की जो डायमेंशन है उसकी जो पावर है वो 1 होगी। k कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डायमेंशंस नहीं होती। मैस की डायमेंशन m, वेलोसिटी की डायमेंशन l t माइनस 1 और जबकि प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन हमें क्वेश्चन में भी गिवन थी जो कि m l स्क्वायर t माइनस 1 और इनकी पावर a b एंड c। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने जो सिमिलर डायमेंशंस हैं उनको एक ब्रैकेट में लिख लेना है, जस्ट लाइक m टू द पावर a into m to the power c, l to the power b into l square to the power c है, so it will become l to the power 2c, then t to the power minus b into t to the power minus c. As a result, whenever the bases are same their powers are added, so k into m to the power a plus c, l to the power b plus c and t to the power minus b minus c. So ये हमारे पास dimensions हमने write down कर ली हैं on both the sides of the equation. इसके बाद हमने क्या करना है, हमने compare करनी है powers for the mass, length and time. And if we compare the powers of the mass, length and time, we get mass की जो power है on the left hand side it is 0, while on the right hand side it is a plus c. For the length, on the left hand side the power for length is 1 and on the right hand side it is b plus 2c. So b plus 2c will be equal to 1. And for the time, again on the left hand side its power is 0, while on the right hand side its power is minus b minus c. सो अब इन तीन इक्वेशन की हेल्प से हमने इन तीनों पावर्स को a, b और c को फाइंड आउट कर लेना है। सो सबसे पहले अगर हम इस इक्वेशन 3 को देखें, सो यहाँ से हम राइट डाउन कर सकते हैं b इज़ इक्वल्स टू माइनस c, और इस वैल्यू को अगर हम सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग b सब्सटीट्यूट इट्स वैल्यू विच इज़ माइनस c, सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c एज
it equals to 1. And then if we substitute the value of c in equation 3, we get b is equals to -1, and also if we substitute the value of c in equation 1, we get a is equals to -c while a is equals to -1. So यहाँ पे हमारे पास तीनों पावर्स की जो वैल्यूज़ हैं वो आ चुकी हैं. a की पावर -1 है, c की पावर 1 है और b की पावर -1 है. अब हम इन पावर्स को इक्वेशन a में सब्सटीट्यूट करेंगे. सो द वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू k, m टू द पावर a था जबकि a की वैल्यू -1 है, v टू द पावर b, अगेन b इज़ -1 while h टू द पावर c where c इज़ 1. सो जो नेगेटिव पावर्स हैं उनको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे वेयर दे बिकम पॉजिटिव. सो द लैम्डा इज इक्वल्स टू k h ओवर m v. सो इन दिस केस इस इक्वेशन में जो हमारे पास कांस्टेंट है उसकी वैल्यू को हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस केस में जो कांस्टेंट k है उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है. सो वी कैन राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर द wavelength which is associated with a moving electron as lambda is equals to h over m v. So ये हमने wavelength का formula derive किया है with the help of the dimensional analysis, and this is all for today. थैंक यू सो मच. आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और इससे रिलेटेड जो टॉपिक के कॉन्सेप्ट हैं वो इजीली समझ में आ गए होंगे. स्टिल इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन राइट डाउन योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक. टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.